So, good evening to everybody. This is an environment and ecology class today. And in this class, we will discuss the desert ecosystem. Right? So, आज की इस क्लास में हम मरुस्थल के बारे में डिस्कस करेंगे, desert ecosystem. Right? Because in the previous class also, we discussed a little about the deserts, desert ecosystem, types of the deserts we discussed in our previous class also. Uh, in today's class, I will discuss it in little more detail, right? Because this topic has become important for your next preliminary examination. Because the reason is that yesterday our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, you can say, delivered a keynote address at the UN high-level dialogue on desertification, land degradation and drought. Right? कल हमारे प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल कीनोट एड्रेस किया है यूएन हाई लेवल डायलॉग था किसके ऊपर डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राउट के ऊपर राइट सो एंड that keynote address was important in one more respect because 2010 to 2020 was observed as a UN decade for deserts and fight against desertification, right? So I'm just writing here, right? So please note it down that 2010 to 2020, right, decade was observed as the UN decade for deserts and fight against desertification, right? Fight against desertification, right? So ये जो हमारा एक डेकेड था 2010 से लेके 2020 तक का डेकेड, इस डेकेड को हमने एक यूएन डेकेड के तौर पे ऑब्जर्व किया. यूएन डेकेड फॉर व्हाट? फॉर डेजर्ट्स इन फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, राइट? मरुस्थल और मरुस्थल को रोकने के लिए, राइट, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो हमारी फाइट है, राइट, उसको समर्पित था ये डेकेड, राइट? सो एंड yesterday was the you can say closing ceremony of this decade and the opening ceremony of the next decade, right? So the next decade, which is the decade 2020, right, 2020 to 2030 decade, right, has been declared as the UN decade for ecosystem restoration, right? Restoration, right? Ecosystem restoration. Restore होता है किसी चीज को फिर से बहाल करना, right? So ecosystem restoration. So this is the decade for that, right? And moreover, today is the 15th of June, and the day after tomorrow means 17th of June is you can say observed as a World Day to combat desertification, right? So मरुस्थलीकरण के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, right, जो हमारी फाइट है उसको रोकने, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए लोगों के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम जो 17th of June है, 17th of June is observed as World Day to combat desertification, right? Combat desertification, right? So मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए
लोगों के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम 17 जून को ऑब्जर्व करते हैं एज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, राइट? सो in the background of all these 3 points, you can see this becomes important to discuss more about the, you can say, deserts and the desertification, right? So first of all, uh, in today's lecture we will discuss about the desert marusthal कहते हैं हम, that what do we mean by the desert, right? So desert क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? डेजर्ट कितनी किस्म के होते हैं, डेजर्ट कैसे बनते हैं, राइट? सो sure Akshay, I will tell. So now the point is, first of all, let us discuss about the desert, that what do we mean by desert, right? So here is the point that deserts are deserts are we can say, right, ecosystems arid ecosystems, right, that receive rainfall less than 25 centimeter per year, 25 centimeter per year. But there are certain areas where the rainfall received is even 5 centimeter or even less than that also. There are certain areas like Death Valley of America, Death Valley of USA, where the rainfall received, Death Valley of USA, where the rainfall received is right, rainfall received is, we can say, less than, that is less than 5 centimeter per year also, 5 centimeter per year also, right? So this is what do we mean by about the desert, right? So desert वो areas हैं, वो ecosystems हैं. I'm just telling that what do we mean by the ecosystem, right? वो ecosystem है जहाँ पर जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर सालाना से कम रहती है. बट डेथ वैली जैसे कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर रेनफॉल 5 सेंटीमीटर या उससे भी कम रहती है. सो दैट इज द पॉइंट देयर, राइट? सो बट देयर इज वन there are two important characteristics of the deserts, we can say, right? Two important characteristics of deserts. One important characteristic of desert, that is, we can say, the aridity. Aridity means dryness, सूखापन होता है, right? And दूसरी चीज क्या है कि evaporation जो है, right? Evaporation is more than the rainfall, right? बरसात कम होती है और evaporation ज़्यादा होती है. So these are the two important characteristics of the desert ecosystem, right? So now the point is this, in this particular definition we have used two different terms, right? So one term we have used, that is the desert, and second term we have used, that is the ecosystem, right? So इस definition में हमने दो टर्म्स को यूज किया है, एक टर्म डेजर्ट है और दूसरी टर्म हमने यूज की है इकोसिस्टम, राइट? सो डेजर्ट का मीनिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट डेजर्ट इन एन एरिया which is characterized by these two, by one is the aridity and second is the evaporation is more than the rainfall, that is called the desert, right? And the next important thing, that is the ecosystem, right? What do we mean by ecosystem, right? Ecosystem क्या होता है? Ecosystem is a geographical area, right? It is a geographical area where you can say two types of objects exist. One is the living objects, means the life, right? And second type of object, that can be the non-living objects,
can be there in an ecosystem, right? So ecosystem एक geographical area है जिस geographical area के अंदर there are the living objects as well as the non-living objects, right? And the we can say interaction between those living and non-living objects, right? So interaction between the interaction between the living organisms and the non-living objects, right? And the non-living objects in a geographical region, right, makes it an ecosystem, right? So geographical region makes it an ecosystem, right? So ecosystem क्या होता है? किसी भी geographical क्षेत्र के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन है, तालमेल है, राइट, उन चीज़ों को हम कहते हैं कि दैट इज वी कैन से द इकोसिस्टम, राइट? सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय द ecosystem. Okay, so this is the desert ecosystem we can say here, right? So now in the previous lecture I told you one more thing. In the previous lecture, what was that? That was you can say that there are two types of deserts, right? As far as the two types of deserts are concerned, one type of desert I told you, that is the cold deserts, right? And the second type of desert I told you, that is the hot desert, right? Hot desert, right? So cold deserts and hot deserts, these are two types of deserts, right? So if we take the example of the cold desert, right? So we can say Ladakh desert in India, that is an example of the cold desert, right? And if we take the example of the hot desert, right? So Thar desert, which is called the Great Indian Desert also, the Great Indian Desert, right? So that is called the Great Indian Desert is a hot desert. That is an example of the hot desert. So we can say that this way, there are two types of deserts, right? Cold desert as well as the hot desert. There are two types of deserts are there, we can say. Okay. So I hope this point is clear to you, right? So now the next point was that the deserts, right? So on the basis of the geographical location, we can say there are different types of deserts, right? On the basis of a geographical location. Sir, show previous page 1 minute. Yes, 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 please. Please note it. Done? Yes, sir. Okay. So on the basis of the geographical location, I told you that there are different types of deserts, right? There are different types of deserts, right? Different types of desert. So as far as those different types of deserts are concerned, I told you in the previous lecture that one type of desert is, we can say, that is the rain shadow desert, right? That is the rain shadow deserts are there, right? So this is a type of the desert here, right? So I'm just telling you that what do we mean by the rain shadow desert, right? And the second type of desert is, we can say, that is the subtropical deserts, right? Subtropical deserts. This is the second type of deserts, right? And the third type of deserts is, we can say, that is the interior deserts, right? So third type of deserts are known as the interior deserts, right? Interior deserts. And now there is the fourth type of desert. Fourth type of deserts is known as the polar deserts. Polar deserts, right? And
Now the fifth type of deserts, that is the coastal area deserts, right? Fifth type of desert, that is the coastal area deserts or the coastal region deserts, right? So these are the five types of deserts, right? Coastal area deserts. Okay, so these are the five types of deserts. So I hope you are getting me, right? So now, first of all, I will tell you the mechanism of the rainfall कि बरसात कैसे होती है, right? Mechanism of the rainfall, right? So as far as the mechanism of the rainfall, this is important to understand the next story, right? So as far as the mechanism of the rainfall is concerned, बरसात कैसे होती है, सो इसके लिए बेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट? सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमें इसके लिए स्टडी करनी होती है, ह्यूमिडिटी, राइट? सो रिलेटिव का हिंदी मीनिंग होता है सापेक्ष, राइट? एंड ह्यूमिडिटी का हिंदी मीनिंग होता है नमी, राइट? सो एज फार एज द ह्यूमिडिटी इज कंसर्न्ड, right? Yes, beta, I will tell. So as far as the humidity is concerned, by humidity we mean, we can say the amount of water vapor, right? The presence of water vapor in the in the air, right? So वायु में जो वाटर वेपर है उसकी जो प्रेजेंस है, राइट, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है. And relative means you can say मतलब सापेक्ष, right? So now the point is that relative humidity, right? I am taking it as RH, right? So relative humidity, what is that? We can say that relative humidity is equal to, right, the total moisture in air, right? Total moisture in air, right? सो वायु में टोटल वाटर वेपर कितना है, मॉइस्चर कितना है, एंड डिवाइडेड बाय द मॉइस्चर, द टोटल मॉइस्चर एयर कैन बियर at a given temperature, right? At a given temperature, right? So यहाँ भी हम at a given temperature लिखेंगे because the moisture bearing capacity of the air changes with change in the temperature, right? At a given temperature. Okay, so this point is very much important. Please don't ignore this point. अगर आप एग्जामिनेशन में इसको लिखेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो प्लीज़ इस पॉइंट को ज़रूर मेंशन करना है एट ए गिवन टेम्परेचर, बिकॉज यू नो दैट द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू रिटेन मॉइस्चर और टू एब्जॉर्ब और टू बियर मॉइस्चर चेंजेस विद द चेंज इन द टेम्परेचर, राइट? सो जैसे जैसे तापमान में चेंज आती है वैसे वैसे एयर की जो टेम्परेचर absorbing capacity change होती है, right? Temperature bearing capacity change हो. So I'm just telling you, see, with increase in temperature, अगर temperature increase होगा तो moisture bearing capacity of the air will fall, right? Moisture bearing capacity of the air will fall, right? So अगर temperature increase होगा तो एयर की जो मॉइस्चर बीरिंग कैपेसिटी है उसमें गिरावट आएगी, राइट? मॉइस्चर बीरिंग कैपेसिटी ऑफ एयर वुड इंक्रीज, सॉरी मेरे से ये गलत हुआ है. ओके, सो मॉइस्चर बीरिंग कैपेसिटी ऑफ एयर वुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, राइट? सो यहाँ हम इसको इंक्रीज करेंगे, राइट? सो दैट इज द मॉइस्चर बीरिंग कैपेसिटी, right? It means warm air can bear more moisture than the cold air, right? So moisture bearing capacity increases. Okay, and similarly beta vice versa होता है. Vice versa क्या है कि if there is fall in temperature, then the moisture bearing capacity of the air will also fall, right? So बेटा यहाँ से हम conclude करते हैं, क्या हम conclude करते हैं
कि वार्म एयर कैन बियर मोर मॉइस्चर, राइट, कैन बियर मोर मॉइस्चर, right, more moisture in comparison with the cold air, right. So जो वार्म एयर होगी वो ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है कोल्ड एयर के कंपैरिजन में, राइट. सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू, राइट. सो नाउ बेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हम बात कर रहे थे. मैंने आपको बोला है कि relative humidity is equal to total moisture in air at a given temperature, and the total moisture air can bear at that temperature, right, multiply by 100, right. So ये percent में आ जाएगा. So now let us suppose, right, temperature is 28 degrees Celsius, right. So let's suppose that is the temperature, right. 28 degrees Celsius is the temperature, and we can say at this temperature the total moisture in air, let's suppose that is 60 units, right. Total moisture in air, that is we can say 60 units, right. And the capacity of air to bear the moisture, that is let's suppose 100 units, right. So multiply by हम 100 कर देंगे इसको. So it means the relative humidity, right, of the air at present at 28 degrees Celsius temperature, that is 60%, right. So beta, if the relative humidity of the air is 60%, then you cannot expect rainfall at this stage, at this point, right. So अब अभी रेनफॉल होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी 60% है, राइट. सो बेटा रेन कब होता है, राइट. रेन को हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, राइट. सो प्रेसिपिटेशन अकर्स, राइट, प्रेसिपिटेशन अकर्स, रेन तब होगा व्हेन द relative humidity, right, will become 100%, right, will become 100%. 100% जब relative humidity होती है तो we say that the air is saturated, कि air अब saturate हो चुकी है, right. Air does not have any capacity to bear more moisture, right. So अभी वायु में और मॉइस्चर को बियर करने की कैपेसिटी नहीं है, राइट. सो जब एयर सैचुरेट हो जाती है उसका मतलब ये होता है, राइट, द एयर इज नॉट एबल टू बियर मोर मॉइस्चर, राइट, बियर मोर मॉइस्चर, राइट. सो तब बेटा क्या होगा, राइट. सो जब एयर मॉइस्चर नहीं कैरी और कर सकती, सो देन क्या होगा, एयर विल shed off the moisture, right. Air will shed off the additional moisture, right, shed off the moisture, right. So बेटा ये एक कंडीशन है कि इसके लिए ये होना ज़रूरी है, राइट. एंड बेटा दूसरी बात क्या होती है मैं आपको बताता हूँ. अब क्या है कि बेटा आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगर किसी का ये पेंडिंग है काम तो मुझे बता दीजिए, राइट. मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ. ओके, सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो नाउ द पॉइंट इज दैट आई हैव टोल्ड यू दैट relative humidity, right, is you can say total moisture in air, at temperature, let's suppose T डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर T, right, and divided by the moisture air can absorb at temperature T, right. The moisture air can bear or can hold, moisture air can bear at a temperature T, right. So T टेम्परेचर के ऊपर एयर कितना मॉइस्चर ले सकती है, कितना मॉइस्चर बियर कर सकती है, एक ये होता है. एंड इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही मैंने पहले पेज पे फॉर्मूला लिखा था, राइट. सो अब बेटा क्या होता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 पे कैसे जाएगी, राइट. रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 पे कब जाएगी बेटा, नंबर 1, पहला केस ये होगा
right? If more moisture is added to the air at the same temperature, right? अगर टेम्परेचर वही रहता है, टेम्परेचर में कोई चीज नहीं आती और एयर में हम और मॉइस्चर ऐड कर देते हैं, one point is that, right? And second point is that, right, if the temperature of the air mass, right, so जो वायु है, एयर मास है, उसका टेम्परेचर, राइट, ऑफ द एयर मास फॉल्स, राइट, अगर उसका टेम्परेचर गिर जाता है, कमी आ जाती है टेम्परेचर में, तो भी उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और टोटल मॉइस्चर उतना ही रहेगा, तो भी एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% पे चली जाएगी। सो बेटा इसी चीज के ऊपर जो हमारा रेनफॉल का मैकेनिज्म डिपेंड करता है, राइट। सो मैकेनिज्म कैसे होता है बेटा, जैसे हम बात करते हैं कि इन द राइट मैकेनिज्म कब कैसे होता है बेटा, यू कैन से, राइट, सो व्हेन द air mass cools down, right, when the air mass cools down, right, the relative humidity increases to 100, right, increases to 100%, or the air becomes saturated, we can say, right, so the condensation takes place. Then क्या होता है, condensation means कि जो भी वायु में वाटर वेपर है, राइट, वो गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, इंक्रीजेस टू 100, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, राइट, वो ठंडा होने से जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, ओके। सो जब कंडेंसेशन टेक्स प्लेस होगी तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन अकर्स, राइट, तब फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगी एंड द रेन फॉल्स, राइट, तब फिर बरसात होती है। सो ये एक मैकेनिज्म है बेटा रेनफॉल का, राइट। सो नाउ कैसे होता है बेटा, कुछ एरियाज में क्या होता है कि जो वार्म एयर है, राइट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, सो वार्म एयर, राइट, वार्म एयर, राइट, एक्सपेंड्स, हमें ये भी मालूम है कि जब हम एयर को वार्म करेंगे, राइट, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एयर की एक्सपेंशन होगी, राइट, वार्म एयर का फैलाव होगा, राइट, सो वार्म एयर एक्सपेंड्स, राइट, सो व्हेन इट एक्सपेंड्स it rises, right, it rises, you can say, vertically upward also, right, vertically upwards, तो फिर ये vertically upward भी मूव करेगी, राइट, फिर ये वर्टिकली अपवर्ड भी मूव करेगी, यस बेटा आई एम टेलिंग यू, फिर ये वर्टिकली अपवर्ड भी मूव करेगी, राइट, और बेटा जब ये वर्टिकली अपवर्ड ये मूव करेगी, राइट बेटा, तब क्या होगा, टू थिंग्स विल अकर, राइट, टू थिंग्स विल अकर, one is what, that is the fall in temperature due to increase in height, right, जब एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो एयर का टेम्परेचर गिरेगा, राइट, ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट, राइट। सो मैंने शायद आपको कभी बताया है पहले कि जो राइट, सो इन द ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फियर की बिल्कुल लोएस्ट लेयर है जो सरफेस से स्टार्ट होती है, राइट, सो ये 18 किलोमीटर तक, 8 to 18 किलोमीटर तक जाती है, राइट, सो इन ट्रोपोस्फियर, right, you can say the temperature falls at the rate of right 6.4 degrees Celsius per kilometer increase in height, right, per kilometer increase in height, okay, so this is known as the normal lapse rate, right, इसको हम क्या बोलते हैं, normal lapse rate कहते हैं, राइट, नॉर्मल लैप्स रेट, ओके। सो प्लीज इस चीज को नोट करना है कि ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे
तो हर 1 किलोमीटर के पीछे 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट आएगी, राइट। सो इट मीन्स जब एयर मास ऊपर उठेगा, राइट, तो क्या होगा, वो ठंडा होगा, है ना। तो देयर विल बी फॉल इन टेम्परेचर, राइट, ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट. And the second thing is that is the atmospheric pressure, right. So that is also an important phenomenon, right. That is the atmospheric pressure, right. So now what is this atmospheric pressure? Atmospheric pressure क्या होता है? That is the weight of the total column of air, right. Weight of column of air over a unit of area, right, over a unit of area, right. So let's suppose बेटा हम यहाँ लेते हैं कि this is the square centimeter और we can say square inch area, हमने ये ले लिया, राइट। स्क्वायर सेंटीमीटर बोल दो इसको, स्क्वायर इंच ले सकते हो, कुछ भी ले लो, राइट। सो बेटा इस एरिया के ऊपर, राइट, नीचे से लेके ग्राउंड से लेके स्पेस तक जितना एयर का कॉलम एग्जिस्ट करता है, जितनी एयर है, राइट, सो उसका टोटल वेट है जो, वो इस प्लेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, राइट। सो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया बेटा कि पर यूनिट एरिया के ऊपर जितना कॉलम ऑफ एयर एग्जिस्ट करता है उसका जो टोटल वेट है वो किसी प्लेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, राइट। सो नाउ व्हाट इज द पॉइंट हियर बेटा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फॉल आएगा, राइट। यहाँ से अब हम यहाँ पहुँच गए, तो जब हम यहाँ आए यहाँ से तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रह जाएगा क्योंकि इसके ऊपर जो कॉलम ऑफ एयर है वो अब कम है, राइट। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल फॉल, राइट। सो नाउ द सेकेंड रीजन इज द फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि ऐसा क्यों होता है, राइट। जो जब एयर वर्टिकली राइज होती है तो फिर ये दो चीज़ें होती हैं, फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट एंड दूसरा फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। दूसरा ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फॉल आता है। तो अब बेटा क्या होगा, किसी चीज़ के ऊपर पहले हमने मतलब कंप्रेस किया हुआ है, उसके ऊपर मतलब प्रेशर है, राइट। सो बेटा इफ द प्रेशर विल बी मोर देन व्हाट विल हैपन, द मॉलिक्यूल्स विल बी क्लोजर टू ईच अदर, right. The molecules, right, will be closer, right. So बेटा अगर molecules closer होंगे तो क्या होगा बेटा, there will be more friction, right. So वहाँ पर friction होगी, right. Air molecules or other things, right, particles are very close to each other, जैसे dust particle और चीज़ें, तो will be closer to each other, will be more friction, right. More friction means more heat, राइट। और जैसे जैसे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गिरावट आएगी, सो वैसे वैसे क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट। दैट मीन्स बेटा द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, राइट। व्हाट विल हैपन, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, राइट। सो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो बेटा इंक्रीज हो जाएगी, राइट। एंड विद इंक्रीज इन स्पेस, राइट, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जैसे जब मॉलिक्यूल्स में स्पेस इंक्रीज हो जाएगी, राइट, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वी कैन से बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, राइट। सो व्हाट विल हैपन बेटा, टेम्परेचर विल फॉल, राइट, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगी, हीट कम हो जाएगी, सो द टेम्परेचर विल फॉल, राइट। सो बेटा दिस इज द पॉइंट, राइट। सो आपने ये पूरी स्लाइड को नोट कर लो बेटा, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने वाला हूँ, then I will move on to the next slide, right. So बेटा आपको समझ आ रही है सभी को, निशांक, आसिका, अक्षज, right, हर्षिता and Pranali and Amrit and Kumkum. Yes, sir. Okay, Kumkum बेटा, are you getting? Please tell me. Yes, sir. Okay बेटा, good. So temperature will fall, right. So यहाँ तक हमने ये कर लिया है, right. So now yes, so now beta, now the next point is that what is the next point which is important,
right? So with fall in temperature, right? With fall in temperature, when the air mass when the air mass, right, cools down, right, cools down, what will happen? The uh, gaseous, the moisture, right? The moisture converts from gaseous state, right? Gaseous state into the liquid state. ओके, इनटू द लिक्विड स्टेट। ये तो आपको मालूम ही है। तो जब वो ठंडा होगा तो फिर क्या होगा? फिर वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, जो एयर के अंदर जो वाटर वेपर है, जो मॉइस्चर है, राइट। और बेटा जब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो बेटा देन क्या होगा? राइट, देयर आर, वी कैन से, राइट, सो there are particles, right? Particles of salt, soot, dust, right? Pollen in the air, right? In the air, right? So beta, then what happens, beta? Those particles, right, become the nuclei, right? Those particles become nuclei, right? And the condensation of water, right? Condensation of water vapor takes place around them. Water vapor takes place, right, around them, right? And it looks us, right? And it looks us in the form of as clouds or in the form of clouds, right? So ये हमें clouds की form में नजर आता है जब ये condensation उसके you can say around हो जाती है, right? It looks us as clouds, right? So ये clouds होते हैं, right? It looks as clouds, right? And जब clouds form होते हैं तो then rainfall होता है, right? Then rainfall होता है, right? और बेटा clouds की बहुत सारी types होती है, यहाँ मैं types नहीं करवाऊंगा, but yes, one point is important here कि जिस क्लाउड्स के साथ बेटा निम्बो या निम्बस वर्ड लगा हुआ है वही रेन बीरिंग क्लाउड होते हैं, निम्बो और निम्बस, राइट। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, वही रेन बीरिंग क्लाउड्स होते हैं, अदर क्लाउड्स रेन बीरिंग क्लाउड्स नहीं होते, राइट। सो ये मैंने आपको सिंपल मैकेनिज्म बताया है कि हाउ डज द रेनफॉल अकर्स, राइट, रेनफॉल कैसे होता है, क्योंकि ये आगे हमें काम आएगा, राइट। सो ये वाली स्लाइड से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अगली स्लाइड पे। सो अगर किसी का पेंडिंग है तो नोट कर लो, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, राइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट हाउ द डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड, राइट। सो पहले मैं डिस्कस करूंगा रेन शैडो डेजर्ट्स, राइट, रेन शैडो डेजर्ट्स, राइट। सो बेसिकली इसमें पहले आपको एक टर्म को जानना होगा, राइट। सो लेट्स सपोज बेटा दिस इज ए हिल और दिस इज ए माउंटेन, वी कैन से, राइट। और अब बेटा क्या है कि लेट्स सपोज एयर इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, राइट, एयर इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, राइट। सो बेटा जिस साइड से एयर आती है इसको हम विंड वार्ड साइड कहते हैं, राइट, इसको हम विंड वार्ड साइड बोलते हैं, राइट। और दूसरी साइड होती है जो, इसको हम लीवार्ड साइड कहते हैं, राइट, इसको हम लीवार्ड साइड कहते हैं। एक विंडवार्ड साइड होती है, दूसरी लीवार्ड साइड होती है, राइट। सो हियर इज द पॉइंट, राइट। सो बेटा एज आई हैव टोल्ड यू कि सी बेटा जब इधर से एयर आ रही है, राइट, सो क्या होगा, सामने देर इज द रेनफॉल, sorry, सामने there is a hill, there is a mountain, right, right. So now what happens beta, this mountain will block the air from you can say crossing to the we can say other side, right. So ये एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है एयर के पैसेज पे, राइट। सो बेटा नाउ क्या होगा, जब एयर बेटा यहाँ आएगी तो एयर के सामने और कोई रास्ता नहीं है, राइट। सो एयर विल राइज अपवर्ड,
यहाँ से एयर क्या होगी, एयर अपवर्ड राइज करेगी, राइट, और एयर के पास कोई रास्ता नहीं है, राइट. सो नाउ बेटा what will happen, number one, right, when air rises, right, it loses energy, right. Energy means heat, right. It loses energy and cools down, right, cools down. One point is this, which is very much important point, right. And the second point I told you, when air rises, right, it loses temperature, right, loses temperature due to the normal lapse rate, right, normal lapse of temperature with increase in height, right. So height बढ़ने से टेम्परेचर में गिरावट आती है, वो भी हमने देखा है, नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट, राइट. एंड तीसरे तरीके का काम क्या होता है बेटा, when air rises, right, atmospheric pressure falls, right, and the air mass cools down, right, air mass cools down, right. बेटा बेटा जब ये एयर राइज करेगी, राइट, एंड राइज करने के बाद बेटा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल होगा, राइट, फॉल होगा, एंड एयर कूल्स डाउन, right, air cools down बेटा. So this process is known as the, we can say, adiabatic cooling, right. So इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, adiabatic cooling, right. So please bear this in mind that adiabatic cooling takes place, right, adiabatic cooling takes place. Okay, so ये cooling का process होता है, air के cooling, right. So now बेटा, these are the, we can say, three important points, right, which I have just told you, that ये तीन चीजें होती हैं जिससे air mass का temperature गिरता है, right. And with fall in the temperature of this air mass, what will happen, the relative humidity will increase, right. So जब air का temperature गिरेगा, yes, मैं आपको ये भी यहाँ नोट कर देता हूँ आपको याद रखने के लिए, right. So with fall in temperature, right, with fall in temperature, the relative humidity increases. Please bear this in mind, right. Relative humidity increases, right, and with the increase in temperature, right, the relative humidity falls, right. With increase in temperature, the relative humidity falls, right. So यहाँ क्या हो रहा है, temperature is falling, the relative humidity will increase, right, and the moment the relative humidity reaches at 100%, means the air becomes saturated, right. So बेटा जब relative humidity 100% पे चली जाएगी, air saturate हो जाएगी, तो यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ पर फिर cloud formation होगी, right. So here what will happen here, the cloud formation will takes place like this, right. So here the cloud formation will takes place, right. So बेटा जब यहाँ पर cloud बनेगा तो क्या होगा बेटा, there will be the fall of rain, right. So precipitation will occur here, right. So here will occur the precipitation, यहाँ rainfall होगा, right. यहाँ रेन गिरेगा, प्रेसिपिटेशन होगी, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, राइट. इस तरफ थोड़ा बहुत हो सकता है, यहाँ रेन गिरेगा, यहाँ रेन गिरेगा, यहाँ रेन गिरेगा, राइट. सो ये हो गया कि रेन इस तरफ गिरेगा, राइट. एंड बेटा एंड द मूवमेंट, राइट, दिस एयर क्रॉसेस द हिल. सो बेटा हिल को क्रॉस करने के बाद व्हाट विल हैपन बेटा, द एयर विल फॉल डाउन, राइट. फिर यही एयर नीचे की तरफ गिरने लगेगी, राइट, नीचे की तरफ गिरने लगेगी, राइट. इट विल फॉल डाउन. सो नाउ बेटा व्हाट विल हैपन व्हेन द एयर विल फॉल डाउन, राइट. सो वन पॉइंट, राइट. सो व्हेन एयर falls, right, falls down, right. So now what is there, it the we can say atmospheric pressure increases, right. Atmospheric pressure increases and the temperature also increases,
राइट, टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो एयर की मॉइस्चर बीरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, राइट। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में फॉल आ जाएगा, राइट। वन पॉइंट इज दैट। एंड दूसरी चीज क्या है, राइट। सो व्हेन द एयर, राइट, सो वी कैन से, राइट, व्हेन एयर फॉल्स, राइट, सो टेम्परेचर वैसे भी इंक्रीज हो जाता है, राइट। टेम्परेचर increases, right, and the relative humidity falls, right। so relative humidity भी fall आएगा, right। so अब क्या होगा बेटा, फिर जब ये एयर नीचे आएगी, so बेटा this particular air mass, right, so if I will tell you this particular air mass, बेटा ये जो air mass है, ये air mass क्या है, one point is that this air mass is warm, राइट। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अब ये जो एयर मास है हमारे पास, दिस एयर मास इज वार्म। पहली बात तो ये है, इज वार्म, राइट, एंड ड्राई, क्योंकि ऊपर मॉइस्चर कैसे आएगा, जितना मॉइस्चर सब था वो तो इसने इधर ही शेड ऑफ कर दिया, राइट। सो ये वार्म है और ड्राई है, एंड दैट इज वाई बेटा इन दिस रीजन व्हाट विल हैपन, नो रेन विल टेक प्लेस, राइट। सो फिर इस रीजन में रेन नहीं होगा, नो रेन और वेरी लेस रेन विल अकर, राइट, वेरी लेस रेन विल अकर। सो फिर इस रीजन में या तो रेन नहीं होगा या फिर इस रीजन में बहुत कम रेन होगा, राइट। सो देन बेटा, then we can say that this region is therefore known as the rain shadow zone, right। so this region is known as the rain shadow zone, right। is it clear to everybody? So this region is known as the rain shadow zone. Yes, sir. Okay, yes. So now beta, what will happen beta in this region, right? So due to the rain shadow zone, because here is the rain shadow zone, right? Rainfall does not occur here, so that is why, right? So this area will remain arid. Arid means desert, right? Arid means dry, right? So this region will remain dry, right? And deserts develop here, right? Remain dry, and what happens? Deserts develop here, right? Deserts develop here, right? So यहाँ मैं आपको एक 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 दो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देता हूँ डेजर्ट की। नंबर वन बेटा, इंडिया में जो लद्दाख डेजर्ट है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द रेन शैडो डेजर्ट, राइट। लद्दाख डेजर्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली बात है कि लद्दाख डेजर्ट इज ए कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि वहाँ रेनफॉल नहीं होता लेकिन टेम्परेचर जरूर लो रहता है, राइट। कोल्ड डेजर्ट है। एंड दूसरी चीज़ है कि दिस इज ए रेन शेडो डेजर्ट इन द हिमालयास, राइट। रेन शेडो डेजर्ट in the Himalayas, right? Because it is, you can say, enclosed by the mountain ranges from, you can say, all the sides, right? So इसके चारों तरफ mountain ranges हैं और कहीं से भी मतलब इस region में जो moisture carrying winds enter नहीं करती, right? So if the moisture carrying winds are not entering there from any side, so then this region remains dry. That is why the desert is here. Okay, so one is that, right? And the second important example of the this that is the, we can say, that is the Death Valley of America, right? Death Valley of America, ये जो अमेरिका की डेथ वैली है, right? This comes in the rain shadow region of the, right, Sierra Nevada mountains, right? So it comes in rain shadow region of right, Sierra Nevada, right, NEVADA, right, Sierra Nevada. So ये वहाँ पर आ जाती है, right? And one more very much interesting point here is that हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया के अंदर बेटा इसकी वेस्टर्न घाट्स की, राइट। सो ये हमारा वेस्टर्न घाट रीजन है बेटा, राइट। ये हमारा वेस्टर्न घाट रीजन है और बेटा
यहाँ जो मॉनसून विंड्स आती हैं वो किस तरफ से आती हैं बेटा? द विंड्स कम फ्रॉम अरेबियन सी साइड, राइट? इस साइड से विंड्स आती हैं, राइट? तो वेस्टर्न घाट पे क्या है? हिल्स हैं, राइट? सो जैसे ही वो हिल्स एरिया में आती है इधर वेस्टर्न घाट पे, तो क्या होता है? ये वाला फिनोमिना अक्कर होता है. सो बेटा दैट इज वाई, right, on the windward side of the western ghats, right, the rainfall occurs, you can say, between 100 centimeter to 250 centimeter per year, right? इधर तो रेनफॉल इतना होता है, राइट? एंड बेटा इस तरफ जस्ट आप पहाड़ी को क्रॉस करके इस तरफ आ जाओ, सो इस तरफ बेटा 5 to 10 सेंटीमीटर रेनफॉल रहता है हमारे वेस्टर्न घाट रीजन में, राइट, in the rain shadow zone. So beta this is the difference between the rainfall, right? ऐसा difference क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है. Okay, so beta this is the one category of the deserts which is called the rain shadow deserts. I hope this point is very much clear to everybody about. Yes, sir. Sir, I have a doubt, sir. Yes, please. Sir, since we have learned that the winds which are descending on the leeward sides, they are warm and dry. Yes. Sir, then how come Ladakh desert become a cold desert? Because sir, the winds are warm. No, beta. Winds are dry, right? Winds are dry, right? Beta, what? But beta, we have to see the altitude also, ना? मतलब relatively warm होती हैं. Okay, sir. Okay, मतलब their altitude is too much high. That's why. Yes, right. Beta, relatively warm होती हैं, right? So beta, there the winds are cold and dry, right? There the winds are cold and dry winds. Okay. Got it, sir. Got it. I got it. Yes. So that is the point. Okay. And sir, this second thing that you explained, that that Valley of America, is it a hot desert or a cold desert? Beta, this is a hot desert. Okay. So now the next point is that, right? The next is the interior deserts, right? Interior deserts, right? So beta, interior deserts are the deserts which are formed, right, because they are in the interior of the continents, right, where the rain-bearing winds cannot reach, right? So they are deserts, right? Deserts in the interior of continents, interiors of continents, right, where the rain-bearing winds cannot reach, right? जहाँ तक rain-bearing winds हैं जो वो पहुँच नहीं सकती, वो जा नहीं पाती, right? Winds cannot reach, right? So that is the point here, cannot reach. Okay, so that is why the deserts are formed there. वहाँ rainfall नहीं होता, right? So let's suppose beta this is a very large continent, right? So I am taking this example, right? This is a very large continent, and beta इस continent के इंटीरियर में, राइट, इंटीरियर लेट्स सपोज बेटा यहाँ पर कोई डेजर्ट बन गया, राइट? क्यों बना बेटा? अगर रेन बीरिंग विंड्स इस डायरेक्शन से आएगी तो भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो ड्राई हो जाती है, राइट? रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं और वहीं पर वो अपना लोड शेड ऑफ कर देती है ना, मॉइस्चर गिरा देती है. अगर इस तरफ से एंटर करेगी तो भी ये अपना मॉइस्चर गिरा देगी रास्ते में, यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी. इस साइड से एंटर करेगी तो भी अपना मॉइस्चर गिरा देती है रास्ते में, राइट? तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते. सो बेटा दैट इज वाई कई बार जो इंटीरियर पार्ट्स होते हैं कॉन्टिनेंट्स के वहाँ पर डेजर्ट बन जाते हैं, राइट? सो बेटा ऐसी एग्जांपल्स अभी मैं आपको बताता हूँ, सो ऐसे इंटीरियर डेजर्ट्स की, राइट? सो बेटा वन इम्पॉर्टेंट डेजर्ट जो काफ़ी बड़ा डेजर्ट भी है, दैट इज़ द Gobi Desert of China, right? So Gobi Desert of China, that is an example of the interior desert, right? And दूसरा है बेटा Taklamakan Desert, right? Desert of China, ये भी चाइना में है, right? ये भी काफ़ी बड़ा desert. And तीसरा है बेटा that is known as, that is you can say Daste Kavir Desert, right?
दस्ते कवी डेजर्ट ऑफ ईरान। ये डेजर्ट बेटा ईरान में है, राइट। इसको आप रेन शेडो जोन में भी कह सकते हो इस डेजर्ट को, बिकॉज कई बार कुछ ऐसे डेजर्ट हैं जो इंटीरियर भी हैं, रेन शेडो जोन में भी आ जाते हैं। सो एक डेजर्ट एक से ज़्यादा कैटेगरीज में फॉल कर सकता है, क्योंकि इस डेजर्ट की बेटा खासियत क्या है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। यहाँ पर ये डेजर्ट है, राइट। इस डेजर्ट को का यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ दास्ते कवीर, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, राइट। दास्ते कवीर, राइट। और ये बेटा एक रीजन है, राइट। सो जिस रीजन में यहाँ पर बेटा आपका कैस्पियन सी फॉल करता है, राइट। इस रीजन में आपका क्या है, कैस्पियन सी है। सो लेट मी राइट इट हियर दैट दिस इज द कैस्पियन सी, राइट। कैस्पियन सी सुना है ना आपने सभी ने, दिस इज द कैस्पियन सी, Yes, sir. राइट। Sir. एंड बेटा कैस्पियन सी के एग्जैक्टली नीचे पार्ट में ये वाला जो पार्ट है बेटा, यहाँ पर है आपका एल्ब्रोस माउंटेन्स, राइट। एल्ब्रोस माउंटेन्स, ओके, एल्ब्रोस माउंटेन्स, राइट। एंड बेटा जो आपका बेटा ये वाला साइड है इधर इधर, राइट। और यहाँ पर है बेटा आपकी पर्शियन गल्फ, राइट। आपने पर्शियन गल्फ भी सुना है सभी ने, दिस इज नोन एज द पर्शियन गल्फ, राइट, जिसको हम खाड़ी बोल देते हैं, राइट। पर्शियन गल्फ, सॉरी, इसको खाड़ी बोल दें। ये पूरा पर्शियन गल्फ रीजन है। और ये जो माउंटेन रेंज है, राइट, ये है बेटा आपका यू कैन से ज़ारगोस माउंटेन रेंज, राइट। सो ज़ारगोस, ZARGOS, राइट, ज़ारगोस माउंटेन रेंज है ये, ओके। सो बेटा इन दोनों के बीच में ये वाला डेजर्ट बना है, राइट। अगर तो ऊपर से मॉइस्चर लेडन विंड्स आएंगी कैस्पियन सी की तरफ से, तो उनको एल्ब्रोस माउंटेन रोक लेंगे। अगर पर्शियन गल्फ की तरफ से आएंगी तो उनको ये जो है आपके सरगोस माउंटेन्स रोक लेंगे। और दस्ते कवीर है जो, वो ईरान का है, वो एग्जैक्टली इसके बीच में बनता है, राइट। सो बेटा एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, फॉर द UPSC इज दैट, राइट। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। सो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट, कि इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो, देखो, राइट। सो फर्स्ट इज दैट दस्ते कवीर माउंटेन, राइट, सॉरी, डेजर्ट इज इन ईरान, इज इन ईरान, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि दस्ते कवीर डेजर्ट, राइट, दस्ते कवीर डेजर्ट, राइट, lies to the south of right Zagros mountains, राइट। सो ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट आ गई, राइट। और अब क्या है, राइट। सो हमने देखना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, राइट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ये पूछ लेता है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। नीचे आपको कोड दे देगा 1 ओनली, राइट। सेकेंड दे देगा बी में 2 ओनली, राइट। थर्ड सी में दे देगा बोथ 1 and 2, राइट, 1 and 2। एंड डी में दे देगा वो कि neither 1 nor 2, इनमें से कोई भी नहीं, राइट। सो neither 1 nor 2, राइट। सो चलो अभी तो आपको पता चल ही गया कि इसका आंसर ए रहेगा, राइट, क्योंकि जो दूसरी स्टेटमेंट है वो तो रॉन्ग है हमारी, है ना, इसका आंसर ए रहेगा, राइट। लेकिन मुझे ऑनेस्टली बताओ कि अब से पहले मालूम था आपको कि इसका आंसर क्या है? नहीं, नहीं मालूम था। सो बेटा ऐसे क्वेश्चंस UPSC में पूछे जाते हैं, राइट। सो बेटा दैट इज वाई, राइट, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है, राइट। थोड़ा हम स्लो पढ़ते हैं लेकिन हम हर चीज़ को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। सो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, राइट। सो इंटीरियर डेजर्ट्स की हम बात कर रहे थे, ये कैसे बनते हैं वो आपको मैंने बता दिया, राइट। ये एग्जांपल्स भी हमने इंटीरियर डेजर्ट्स की कुछ देख ली हैं, कर ली है, राइट।
So these are some of the examples of the interior desert. Okay, so now the point is that now I'm moving on to the next slide, right? So as far as the next slide is concerned, so अब हम करेंगे that is the deserts of a subpolar region, right? Subpolar deserts, right? So now we will study about these deserts of a subpolar region, right? So as far as the subtropical deserts, मेरा गलत हो गया है, subtropical deserts, right? So let me take it. Subtropical deserts, right? So now the point is that कि ये जो subtropical deserts हैं ये कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, right? So मैं आपको फिर बताता हूँ ये कि बेटा ये हमारी अर्थ है, राइट? ग्लोब है, राइट? और इसके बीच में जो एक सेंटर वाली लाइन है इसको हम सब लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं इसको, राइट? इसको मैं इक्वेटर के नाम से जानता हूँ, राइट? और इक्वेटर का जो बेटा ऊपर वाला पार्ट है, राइट, ये वाला जो पार्ट है इक्वेटर से ऊपर का पार्ट जो है जा रहा, इस पार्ट को बेटा हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट? उत्तरी खंड आ जाता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट? और इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो पार्ट है इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ये भी आपको मालूम ही है सभी को, राइट? सदर्न हेमिस्फीयर, ओके, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। और इसके इस ग्लोब के ऊपर कुछ लाइंस हैं, एक लाइन यहाँ पर लगती है, इसको हम 23.5 डिग्री लाइन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट? ये कहाँ होती है? 23.5 डिग्री पे होती है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये 23.5 डिग्री, मैं इसको ये ले लेता हूँ, राइट? 23.5 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो यहाँ होती है नॉर्थ साइड पे। एंड सिमिलरली एक लाइन ग्लोब पे यहाँ रहती है, ये भी 23.5 डिग्री पे रहती है साउथ की तरफ, राइट? सो इस लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ये सभी को आपको मालूम है, राइट? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, कैप्रिकॉर्न। और इस ये आ जाता है 23.5 डिग्री साउथ पे, राइट? और एक लाइन बेटा यहाँ पर आती है आपकी, ये लाइन 66.5 डिग्री पे आती है, इसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, ARCTIC, आर्कटिक सर्कल, राइट? सो इसको हम बोलते हैं ये 66.5 डिग्री पे रहती है नॉर्थ की तरफ, राइट? हाफ डिग्री, ओके। एंड सिमिलरली एक लाइन यहाँ साउथ में आती है ऐसे, सो ये भी 66.5 डिग्री पे रहती है, इसको हम एंटार्क्टिका सर्कल बोलते हैं, राइट? एंटार्क्टिका सर्कल, ओके, सर्कल। सो ये भी 66.5 डिग्री साउथ की तरफ लाइन होती है, ओके। एंड एक बेटा यहाँ पर एक बिंदु आएगा, पॉइंट आएगा, राइट? एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? अब बेटा क्या है, ये तो चलो मैंने आपको एक अर्थ का ऐसे बना के दिखा दिया, अब मैं थोड़ा इसको ऐसे लेता हूँ, इस तरीके से लेता हूँ, राइट? अब बेटा क्या है कि यहाँ पर जो हमारा इक्वेटर आता है, राइट? लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्वेटर, राइट? ये जो हमारा इक्वेटर का पॉइंट है, यहाँ पर बेटा लो प्रेशर रहता है, राइट? क्योंकि यहाँ सनलाइट बहुत रिसीव होती है और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से लो प्रेशर बनता है यहाँ पर, राइट? सो ये लो प्रेशर जोन है, राइट? और यहाँ बेटा एक 30 डिग्री के आसपास है, इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म मैं आपको बाद में समझाऊंगा, राइट? यहाँ 30 डिग्री के आसपास जो आपका बनता है, ये बेटा रहता है आपका हाई प्रेशर जोन, राइट? दोनों हेमिस्फीयर में 30 डिग्री पे जाकर के आपका क्या बनता है, दैट इज द हाई प्रेशर जोन, राइट? दिस इज द HP, हाई प्रेशर
एंड यहाँ भी आपका बेटा HP बनता है हाई प्रेशर, राइट। सो दिस इज द HP। एंड देन बेटा आगे क्या है, यहाँ पर एक 60 डिग्री के आसपास बेटा फिर जा कर के दोनों हेमिस्फीयर्स में एक लो प्रेशर बनता है, राइट। यहाँ भी लो प्रेशर डेवलप होता है और यहाँ भी लो प्रेशर डेवलप होता है, राइट। एंड बेटा पोल्स के ऊपर फिर आपका हाई प्रेशर बनता है, राइट। ये डिटेल ऐसा क्यों होता है ये हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, राइट। ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, सो ये आएगा, राइट। सो दिस इज देयर, राइट। सो अब बेटा क्या होता है कि जहाँ पर लो प्रेशर है, राइट, सो वहाँ से एयर की मूवमेंट अपवर्ड रहेगी, यहाँ से एयर ऊपर उठेगी, इस तरफ जाएगी, राइट। और यहाँ से भी एयर ऊपर उठेगी और एयर इस तरफ जाएगी, राइट। अब क्या है बेटा, जब यहाँ से एयर ऊपर उठती है तो यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। सो लो प्रेशर बनने की वजह से हाई प्रेशर की तरफ से जो विंड्स हैं, एयर है जो, वो लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। यहाँ से भी एयर मूव करती है हाई से लो प्रेशर की तरफ, ओके। सो अब बेटा क्या है, जब जब यहाँ से एयर इधर मूव कर जाती है तो क्या है, ऊपर से एयर फॉल करती है इस पॉइंट पे, ये एयर ऊपर से फॉल करती है इस पॉइंट पे, राइट। सो अब बेटा क्या होता है, फिर जब यहाँ से एयर फॉल कर जाती है तो यहाँ जो एम्प्टी स्पेस बनता है उसको फिल करने के लिए यहाँ से एयर इधर मूव करती है, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ होता है बेटा, यहाँ से एयर नीचे गिरती है, फॉल करती है, राइट। और बेटा इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए एयर यहाँ से यहाँ जाती है। सो बेटा ये एक सेल बन जाते हैं, एक ये सेल है जो बन गया और एक सेल हमारा ये बन गया, ये दो सेल बन गए, राइट। सो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं भाई, हेलो, हेल्डे सेल। हाँ, दीज आर कॉल्ड द हेडले सेल्स, राइट। सो इन सेल्स को हम हेडले सेल्स बोलते हैं बेटा, राइट, हेडले सेल्स, राइट। सो बेटा यहाँ आपको बेटा क्या नजर आ रहा है कि हेडले सेल्स की जो डायरेक्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में NH में, ये नॉर्थ मैं ले रहा हूँ, राइट, इस तरफ मैं नॉर्थ ले रहा हूँ और इस तरफ मैं साउथ ले रहा हूँ, राइट। दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ, ओके। सो बेटा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हेडले सेल्स है इनकी जो डायरेक्शन है वो रहती है एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी ये, ओके, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में बेटा जो हेडले सेल बनेंगे उनकी जो डायरेक्शन है वो रहेगी आपकी क्लॉकवाइज, राइट। ये देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है साउथ की तरफ, है ना। सो फिर क्या रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में जो इनकी डायरेक्शन है दैट विल बी द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये चीज़ है, राइट। और सिमिलरली बेटा क्या होता है, यहाँ भी बेटा यहाँ पर अब लो प्रेशर है, लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ से एयर ऊपर उठेगी, राइट। जब यहाँ से एयर ऊपर उठेगी तो क्या होगा बेटा, यहाँ से एयर रश करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, राइट। और फिर एयर नीचे फॉल करेगी यहाँ भी एट हाई प्रेशर एरिया, और फिर ये एयर इसको ऑक्यूपाई करने के लिए इधर जाएगी, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ होगा, क्योंकि ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ से एयर जाएगी, राइट। और यहाँ से एयर ऊपर राइज करेगी जैसे हमने पहले किया है, और इस राइट इस वैक्यूम को फिल करने के लिए यहाँ से एयर इस तरफ मूव करेगी, राइट, ये बनता है, राइट। सो ये दो सेल्स बेटा ये बन गए, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर में एक सदर्न हेमिस्फीयर में। सो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पैरल सेल्स। yes, these cells are known as the feral cells, right, feral cells, okay, feral cells। so बेटा feral cells का बेटा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सो प्लीज इस चीज को याद रखना है, राइट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इसकी डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, राइट। सो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी और ये डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, राइट, क्लॉकवाइज, ओके। सो भूलना नहीं इन चीज़ों को,
और ये भी बेटा आपकी जो डायरेक्शन है ये आपकी डायरेक्शन रहेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। सो सिमिलरली अब बेटा यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, राइट। सो बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हाई प्रेशर है, सो हाई प्रेशर की तरफ से विंड लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, राइट। और यहाँ से विंड ऊपर की तरफ उठेगी, राइट। और यहाँ से विंड डाउन आएगी, नीचे आएगी, राइट। और जब विंड डाउन आएगी तो इसको कवर करने के लिए विंड यहाँ से यहाँ मूव करेगी, राइट। एंड सिमिलरली बेटा यहाँ रहेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाएगी, राइट। और ये विंड राइट, सो यहाँ से विंड ऊपर उठेगी, ओके। और यहाँ से विंड नीचे फॉल करती है, जैसे हमने पहले देख लिया है, मैंने आपको बता भी दिया कैसे होता है। एंड दिस विंड विल मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो ये होते हैं बेटा पोलर सेल्स, राइट। सो इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज द पोलर सेल्स, राइट। सो ये पोलर सेल्स रहते हैं, ओके। सो पोलर सेल्स हो गई। सो अब बेटा क्या रहेगा फिर, जो पोलर सेल्स हैं, राइट, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनकी जो डायरेक्शन है बेटा वो रहती है एंटी क्लॉकवाइज, पोलर सेल्स की जो डायरेक्शन है, राइट। सो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, right, so their direction remains anti-clockwise, and in southern hemisphere their direction remains clockwise, right। यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा आपके लिए, anti-clockwise and clockwise, right, anti-clockwise, okay। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको clockwise, right। सो ये इनकी डायरेक्शन रहती है यहाँ पर। सो मुझे लगता है ये इतनी चीज तो आपको क्लियर होगी, राइट। सो अब बेटा हम बात कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, राइट। सो सब ट्रॉपिकल रीजन मींस ट्रॉपिक्स के आसपास, राइट। सब ट्रॉपिकल रीजन मींस ट्रॉपिक्स के आसपास, राइट। सो बेटा ये ट्रॉपिक्स के आसपास वाला रीजन कौन सा है, दिस इज यू कैन से दिस पर्टिकुलर रीजन बेटा, ये रीजन है जो कि ट्रॉपिक्स के आसपास का रीजन है, ये वाला रीजन है जो ट्रॉपिक्स के आसपास का रीजन है, राइट। सो बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेटा जो एयर है वो नीचे गिरती है, डिसेंड करती है, राइट। सो सब ट्रॉपिकल रीजन में हमें क्या देखने को मिला बेटा, हमें देखने को मिला कि एयर इज डिसेंडिंग, राइट, एयर इज डिसेंडिंग, एयर नीचे गिर रही है, देयरफॉर इट इज वार्म एंड ड्राई, एयर गिर रही है इसीलिए एयर है जो वो वार्म है और जो एयर है वो ड्राई है, एंड दैट इज वाई बेटा रेनफॉल वेरी few or very less rainfall occur here, right, occur here, and desert conditions develop in this zone, right, desert conditions develop here। so यहाँ पर आपकी desert conditions develop हो जाती हैं इस region में। this is a very very important point which you should please note, yeah, right, and right, and बेटा that is why यहाँ पर desert बनते हैं। और ये जो हमारे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं ये बेटा कहाँ बनते हैं, बिटवीन 20 डिग्री, राइट, एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स, राइट, बिटवीन 20 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, राइट। सो दोनों हेमिस्फीयर्स में 20 एंड 30 डिग्री के बीच में ये वाले डेजर्ट्स बनते हैं, राइट। सो प्लीज नोट इट, राइट। ये अगर सबने नोट कर लिया तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने वाला हूँ, राइट। अगर किसी का पेंडिंग है तो आप मुझे बता दो, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। डन बेटा, सो चलो, ओके, यस, ओके, इट्स ओके। सो नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो एज फार एज द नेक्स्ट स्लाइड इज कंसर्न नाउ, सो बेटा यहाँ पर फर्क पर क्या है, नाउ आई विल टेल यू some subtropical deserts, right, some subtropical deserts। so कौन से subtropical deserts हैं, so थोड़ा मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, राइट, सो दैट आपको इसका मालूम होना चाहिए, राइट। आप इसको एटलस पे देख सकते हो जाके, मैंने आपको सभी को बोला था कि आपको एटलस यूज करनी होगी, राइट। आपको कौन सी एटलस यूज करनी होगी, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, राइट, यू नीड टू यूज दैट, okay। so which are the subtropical desert, one is the Sahara desert, right, which is the
largest desert, right? So this is the one point, right? And second, that is the you can say great sandy desert. ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ का है बेटा? ऑस्ट्रेलिया का है. सहारा डेजर्ट कहाँ का है? दैट इज ए डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, राइट? ग्रेट सैंडी डेजर्ट इज डेजर्ट ऑफ Australia, right? And the next is that is the Kalahari desert, right? So as far as the Kalahari desert is concerned, this is the desert in Africa, right? And next is the Tanami desert. So Tanami desert is in northern Australia, okay? And the next is that is the Nifud desert, Nefud, Nifud desert, right? So as far as the Nifud desert is concerned, that is a desert of the Africa region. Sorry, that is a desert of that Arabian Peninsula, राइट? सो ये बेटा कहाँ का डेजर्ट है? ये आपका अरेबियन पेनिनसुला पे बना हुआ है, सऊदी अरेबिया की तरफ, राइट? अरेबियन पेनिनसुला का ये डेजर्ट है जो आपका नेफूड डेजर्ट है, राइट? एंड द नेक्स्ट डेजर्ट विच इज देयर, राइट? So the next desert is next to the Nefud desert, there is the Syrian desert, right? So ये सीरिया के पास रहता है. And next is you can say that is the Rab al Khali desert, right? Rab al Khali. So Rab al Khali is also Arabian Peninsula का desert है, right? Peninsula. So ये desert बेटा कहाँ रहता है आपका? ये भी सऊदी अरेबिया के रीजन में है, रब अल खाली डेजर्ट, राइट? एंड देन बेटा देयर इज अ दस्तेलूट डेजर्ट है, ये ईरान में है, दस्तेलूट, right? So please remember this is in Iran region, right? And then beta there is one Libyan desert, right? ये अफ्रीका में है, right? And then beta there is one Nubian desert, ये भी अफ्रीका में है, न्यूबियन डेजर्ट है जो, राइट? ये आपने पूरे याद रखने हैं. Then there is a Sonoran desert. Sonoran desert is in North America, right? So this desert is in North America. This is the Sonoran desert, you can say, right? This is in North America, okay? So now the next point is right. So now the next important point here is that I'm just telling you, right? So now there is the Gibson desert, Gibson, right? So जो Gibson desert है, that is the desert of Australia, right? Desert of Australia. And the next is that is the Great Victorian desert, right? Victorian desert, okay? So Great Victorian desert is also that of the Australia, right? So that is there. And the next is you can say these are some of the subtropical deserts, right? So please bear these in mind. ये बहुत सारे आपको subtropical region के desert आपको बता दिए हैं. So now it is clear to you कि subtropical region में बहुत सारे deserts बनते हैं. This is the reason कि वहाँ पर क्या होता है, जो you can say descending air है, right? Due to the that nature of air, because it is descending, it's warm and dry, and that is the reason that it takes place there, right? And now the next is the polar deserts, right? Polar deserts, right? Because polar deserts, I told you that why these are called the deserts, right? So beta in polar region, right? So there is a you can say glaciers, right? What we find there? We find there snow, ice, right? So these are the things which we found there, right? So beta that is why, right? There is no scope of plants to grow, right? Plants to grow, right? Because plants को ग्रोथ के लिए बेटा क्या चाहिए होता है? प्लांट्स को ग्रोथ के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं. वन इज द you can say one is the sunlight, right? Means
टेम्परेचर, सनलाइट चाहिए, एंड दूसरा क्या चाहिए, वाटर चाहिए। यहाँ पर दोनों चीज़ें कम मिलती हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर प्लांट ग्रोथ के लिए जो environment है that is not conducive for the growth of the plants, right? So this is the point here, right? And the next thing is, and the next point is that because in this region, right, because in this region you can say air remains cool, right? Air remains cool, right? So air cool hai, and moisture is less in air. Why moisture less? Dry air, right? Because there is no scope of the evaporation, because air is cool, temperature is low, right? So water is not there. It is in the form of the snow or ice, right? So that is why evaporation less है. So therefore यहाँ पर rainfall कम होता है, right? So Arctic region में, Antarctic region में, सब polar regions में ये हमें deserts मिलते हैं. Okay, so now the next point is that is the coastal deserts, right? So this is an important point here, right? So as far as the वो नोट करना coastal, रह गया। okay, अभी बेटा, no worries. हो गया सर। Yeah, okay. सर नोट, है? सर ये जो नोट करना था ना स्लाइड, सर वो नोट हो गई। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं मैसेज देखने लग गया था। सो कोस्टल deserts, right? So with the coastal deserts are deserts which are formed, right, on in the coastal regions, right, where coastal deserts are deserts, right? So this is very important point which we are discussing now. जो coastal deserts होते हैं, these are the deserts, right, which are formed, right, formed along the coasts, right? ये तट पे बनते हैं, समुद्री तट पे बनते हैं, कोस्ट्स के आसपास बनते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? ड्यू टू द कोल्ड ओशन करंट्स, राइट? ड्यू टू, बिकॉज हमारे बेटा ये जो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि दिस इज ड्यू टू द ओशन करंट्स, राइट? लेट मी एक्सप्लेन द फिनोमेना नाउ। ओशन करंट्स, राइट? सो बेटा ओशन करंट्स क्या है? Ocean currents are the movements of water, right? Ocean currents are the movements of water, right? So these are the two types of ocean currents, right? One type of ocean current is, we can say, that is the surface currents, and second is the underwater currents, right? So दो किस्म की movement है water की. One is the surface movement of water, and second is the beta underwater currents are there, right? So underwater currents are there, right? वाटर के नीचे वाटर की मूवमेंट जो हो रही है सरफेस के नीचे, राइट? सो टू टाइप्स होती हैं। इसमें बेटा क्या रहता है कि हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वाटर है जो, इट कैन बी वार्म वाटर एंड इट कैन बी कोल्ड वाटर, राइट? वाटर वार्म भी होता है और वाटर कोल्ड भी होता है, दो किस्म का वाटर होता है, right? And beta, as far as the warm water is concerned, warm water is comparatively lighter, right? ये lighter होता है and remains, right, at the surface. ये surface पे रहता है, right? So ये sink नहीं करता नीचे क्योंकि ये light होता है, right? And as far as the cold water is concerned, बेटा cold water कंपैरेटिवली हैवियर होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, राइट? एंड इट सिंक्स, और ये सिंक कर जाता है, नीचे चला जाता है। सो बेटा वार्म वाटर ऊपर रहता है वाटर बॉडी में एंड कोल्ड वाटर नीचे चला जाता है। इज इट ओके? इज इट क्लियर? राइट? सो नाउ बेटा व्हाट इज देयर बेटा अराउंड द इक्वेटर एंड बिटवीन द ट्रॉपिक्स, राइट? अराउंड द इक्वेटर देयर इज द वार्म वाटर। वार्म वाटर कहाँ मिलता है? इक्वेटर के आसपास, राइट? एंड बेटा कोल्ड वाटर कहाँ मिलता है? पोल्स के आसपास, राइट? पोल्स के आसपास, राइट? सो बेटा दैट इज वाई क्या रहता है बेटा, वाटर की मूवमेंट है। वाटर की मूवमेंट कैसे होती है बेटा? ये मान लीजिए, राइट, दिस इज द पोल,
राइट, ये हमारा पोल है और यहाँ वार्म वाटर है, सॉरी यहाँ कोल्ड वाटर है। जो बेटा कोल्ड वाटर होगा, कोल्ड वाटर विल सिंक डाउनवर्ड्स, ये नीचे सिंक कर जाएगा कोल्ड वाटर, राइट। और इसकी मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। एंड बेटा कोल्ड वाटर विल सिंक डाउनवर्ड्स, और जब कोल्ड वाटर नीचे सिंक करेगा तो फिर ये अंडर वाटर मूव करेगा, राइट। मैं इसको अभी छोड़ता हूँ। कोल्ड वाटर विल सिंक डाउनवर्ड्स, राइट। सो बेटा जब कोल्ड वाटर डाउनवर्ड सिंक करेगा तो क्या होगा बेटा, फिर यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा और बेटा इक्वेटर की तरफ से वार्म वाटर आएगा जो सरफेस के ऊपर मूव करता है, राइट। वो इस स्पेस को फिल करने के लिए इधर आएगा, राइट। और यहाँ कोल्ड होकर के वो फिर नीचे मूव कर जाएगा, राइट। और बेटा जो कोल्ड वाटर होगा, राइट, और बेटा जो कोल्ड वाटर होगा, राइट, वो बेटा फिर यहाँ से इस तरफ मूव करेगा यहाँ पर प्लेस को फिल करने के लिए, राइट। और यहाँ आके बेटा ये वार्म होगा, वार्म होके ये फिर वाटर ऊपर की तरफ ये मूव करता रहेगा, राइट। एंड बेटा इस तरीके से जो वाटर की सर्कुलेशन होती है, और इस सर्कुलेशन को, जो ये सर्कुलेशन है वाटर की, इस सर्कुलेशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द वाटर करंट, राइट। ये वाटर करंट है, इसको हम ओशन वाटर करंट कह देते हैं बिकॉज इट इज इन द ओशंस, राइट। ये ओशंस में है। सो समझ आ गई बेटा वाटर करंट की सभी को? यस सर। ओके, आशिका, अक्षज, कुमकुम, आप सभी को बेटा क्लियर है ये, या किसी को प्रॉब्लम है? Yes, sir. ओके ओके, इज इट क्लियर? ओके, इट्स क्लियर, राइट। सो नाउ बेटा व्हाट इज देयर, सो इस तरीके से वाटर की मूवमेंट होती रहेगी, राइट। सो अब मैं बेटा, अब क्या है कि बेटा द रीजन, राइट, द रीजन बेटा वेयर, राइट, इन द रीजन वेयर देयर इज द वार्म वाटर, राइट, जहां पर बेटा वार्म वाटर है। सो वार्म वाटर में बेटा क्या होगा, वार्म वाटर करंट है जहां पर ओशन की, राइट, जहां जिस कोस्टल रीजन पे है। सो वहां पर बेटा क्या होगा, ड्यू टू द वार्म वाटर देयर इज मोर इवेपोरेशन, राइट। वहां पर क्या होगा बेटा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी वाटर की, राइट। अगर बेटा इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो देन देयर विल बी मोर मॉइस्चर इन एयर, राइट। एयर में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, राइट, एयर में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, राइट। एंड अगर बेटा एयर में अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो क्या होगा बेटा, मोर रेनफॉल विल बी देयर ऑन द कोस्टल रीजन्स, राइट, मोर रेनफॉल, राइट। एंड दूसरी तरफ बेटा जहाँ पर बेटा ये रहेगा आपका कोल्ड वाटर करंट रहेगा, राइट, कोल्ड वाटर करंट रहेगा, तो वहाँ पर बेटा क्या होगा बेटा, देयर इज लेस इवेपोरेशन, राइट, देयर इज लेस इवेपोरेशन, क्योंकि कोल्ड वाटर है, इवेपोरेशन नहीं होगी, राइट, टेम्परेचर की वजह से लेस इवेपोरेशन। और अगर इवेपोरेशन लेस है बेटा, सो देयर विल बी ड्राई इफेक्टिंग in the coastal regions, right, there will be dry effect in the coastal regions, right, in coastal regions, okay, in coastal regions. Is it clear to you? Is it clear to everybody? Yes, sir. Okay, okay, it's good, right. So now, right, so now the point is just bit of 1 second, let me address one issue, okay? Oh, so now the next thing is, let me explain it now because this is more important point here, right? So अब हम इसको करेंगे डिस्कस, राइट। सो ये वाला है, ये आप सबको नजर आ रहा है बेटा? हेलो, इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, विजिबल है, यस सर। ओके ओके। सो अब बेटा, अब मैंने करना क्या है यहाँ पर, अब हम यहाँ कुछ काम करेंगे, राइट। इसमें क्या है बेटा कि हम ये देखते हैं कि इस रीजन में बेटा यहाँ पर ये है जो एक ये करंट जा रही है,
ये जो मैं रेड लाइन लगा रहा हूँ ये बेटा आपकी वार्म वाटर करंट जा रही है, राइट। दिस इज ए वार्म वाटर करंट, ये जा रही है, राइट। एंड एक करंट बेटा यहाँ पर ये वाली जा रही है, राइट। सो दिस इज आल्सो नोन एज ए वार्म वाटर करंट, राइट। सो ये वाली करंट है, राइट। एंड यहाँ बेटा ये जाके ऐसे कोस्टल रीजन के साथ साथ ऐसे टर्न ले जाती है, राइट। ऐसे टर्न लेके ये वाली करंट जा रही है, राइट। एंड बेटा नेक्स्ट जाके ये करंट इधर इधर चली जाती है ऐसे, एंड इससे आगे ये वाली करंट है जो बेटा ये इस तरफ मूव कर जाती है नॉर्वे की तरफ, राइट। सो ये है, राइट। एंड एक तो इस तरीके से करंट चल रही है, राइट। सो पहले मैं इतने रीजन की करंट्स के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, राइट। सो नाउ बेटा व्हाट इज देयर, व्हाट इज नेक्स्ट देयर। एंड बेटा एक करंट यहाँ से आ रही है नीचे की तरफ, राइट, वाटर करंट। ये करंट आकर के इस करंट में ज्वाइन कर जाती है। एंड एक करंट बेटा यहाँ से आ रही है इस ऐसे, ये एक ये करंट है, राइट। सो बेटा एक करंट यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ टर्न ले लेती है, राइट। ये करंट है जो ऐसे नीचे की तरफ टर्न ले लेती है, राइट। सो ये इस रीजन में इतनी करंट्स बन गई। ये नॉर्थ एटलांटिक ओशन है, राइट। सो नॉर्थ एटलांटिक ओशन में जो करंट्स बनी हैं बेटा, जो बेटा ये वाली पर्टिकुलर करंट है जो इस रीजन में है, इस करंट को बेटा मैं यहाँ नंबर 1 लिख देता हूँ सो दैट आपको इजी रहे, राइट। इसको मैं नंबर 1 लिख देता हूँ, राइट। सो ये जो नंबर 1 करंट है बेटा, इस करंट को हम लैब्राडोर करंट कहते हैं, राइट। लैब्राडोर करंट कहते हैं। जो बेटा ये मैंने जो ब्लू करंट्स बना रहा हूँ ना, ये ब्लू करंट्स जो आपकी हैं, these are basically the cold water currents, right। ब्लू कलर कोल्ड वाटर के लिए है, रेड कलर हॉट वाटर के लिए है, बस आप इतनी चीज ध्यान में रखना, ठीक है। सो ये कौन सी करंट है, दिस करंट इज नोन एज द लैब्राडोर करंट। सो लैब्राडोर करंट इज ए कोल्ड वाटर करंट, ओके। सो एंड इसको मैं नंबर 2 कह देता हूँ, दिस इज नंबर 2, राइट। एंड ये जो आपकी करंट नंबर 2 है, राइट, इसको बेटा मैं कह देता हूँ दिस इज द ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, राइट। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है ये, इस चीज को भी याद रखना है, दिस इज द ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ओके। सो ये 2 करंट्स ये हमने डिस्कस की है, राइट। और इस करंट को बेटा मैं कह देता हूँ नंबर 3 करंट, राइट, नंबर 3। और ये जो 3 नंबर करंट है इसका नाम है बेटा कैनरी करंट, राइट, CANARY, दिस इज द कैनरी करंट, राइट। सो ये भी आपकी कौन सी करंट है, ये आपकी कोल्ड वाटर करंट है, राइट। एंड अब मैं यहाँ पर बेटा इस करंट को नंबर देता हूँ नंबर 4, राइट। इसको मैं नंबर 5 देता हूँ और इसको मैं नंबर 6 देता हूँ, राइट। एंड इसको मैं नंबर 7 देता हूँ, राइट, नंबर 7 देता हूँ, राइट। एंड इसको मैं नंबर 8 देता हूँ यहाँ पर, राइट, दिस इज नंबर 8, ओके। सो अब हम इन करंट्स के नेम लिखते हैं, राइट। सो ये जो नंबर 4 है बेटा, दिस इज द गल्फ स्ट्रीम, इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, राइट। और जो नंबर 5 है बेटा, इसको कहते हैं नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, right, this is known as the North Atlantic drift, okay। So this is that North Atlantic drift। and now beta जो next है number 6, right। Yes, So sir. number 6 is the Norwegian current, okay, Norwegian current, WEGIAN, sorry, Norwegian current, this is the Norwegian current now, okay। and जो number 7 है बेटा, number 7 is known as the you can say that north, right, equatorial current, right, ये warm water current है। and number 8 है जो बेटा, this is the south equatorial current, right, south equatorial
current. So please bear this in mind. Okay, so these are the currents, right? एंड अब बेटा क्या है बेटा, इन करंट्स के ये जो बेटा नंबर 4, 5, 3 एंड 7 के बीच में बेटा एक ये जो एरिया है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बेटा। इस एरिया को हम कहते हैं सरगासो सी, राइट। यहाँ पर बनता है आपका सरगासो सी, राइट। सो प्लीज नोट इट, दिस इज नोन एज द सरगासो सी, राइट, सरगासो सी, राइट। सो यहाँ पर बेटा क्या है बेटा, बिकॉज यहाँ पर जो वाटर है, फ्रेश वाटर कैन नॉट एंटर हेयर, राइट। सो पूरी इधर भी करंट जा रही है, इधर भी करंट, इधर भी करंट। सो एक पूरा एक यहाँ पर एक बनता है बेटा, सो कॉल्ड द व्हर्लपूल बनता है, राइट। एंड ड्यू टू दैट फ्रेश वाटर फ्रॉम एनी साइड कैन नॉट एंटर हेयर, राइट। और इस रीजन में जो वाटर है वो यू कैन से फ्रेश वाटर एंटर नहीं होता एंड वाटर इज स्टैटिक हेयर, दैट इज वाई इसमें बहुत सारा ग्रास वगैरह जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, राइट। सरगासो ग्रास विच इज अ वेरी यू कैन से टॉल और ग्रास, राइट। और यहाँ पर फिर शिप्स को प्रॉब्लम आती है, राइट, मूवमेंट के लिए। चलो दिस इज द पॉइंट, राइट। और बेटा अब मैं इस रीजन में आता हूँ। सर ये बरमूडा ट्रायंगल के आसपास है क्या? यस बेटा, उसके आसपास ही रह जाते हैं। एंड बेटा नाउ अब मैं आऊँगा इधर इस दूसरी तरफ, राइट। सो इसमें हम फिर करंट्स की बात, पहले मैं वार्म करंट्स की बात करूँगा, राइट। सो वार्म करंट बेटा, एक तो करंट ये जा रही है यहाँ से ऐसे निकल के। सो एक तो ये करंट है, ये जो वार्म करंट है, राइट। एंड दूसरी करंट इस साउथ इक्वेटोरियल करंट में से निकल के इधर नीचे की तरफ जाती है। एक ये करंट है, राइट, एक ये करंट है, राइट। सो एक बेटा एक इसमें क्या रहता है कि यहाँ जो नीचे है जो बेटा, ये पूरे रीजन में एक ऐसे करंट मूव कर रही है, पूरे रीजन में, राइट, ऐसे करंट मूव कर रही है, राइट। ऐसे पूरे रीजन में एक करंट है, ये जा रही है, राइट, ये करंट है, ओके। सो ये करंट है जो इस पूरे रीजन में जा रही है। एंड इसी में से निकल के बेटा एक करंट इस तरफ मूव कर जाती है, राइट। एंड इसी में से निकल के एक करंट इस तरफ मूव कर जाती है, राइट। सो ये करंट्स बन जाती हैं, राइट। सो अब मैं इनको पहले नंबर देता हूँ, फिर इनका हम नेम ले लेंगे। दिस इज नंबर 9 एंड दिस इज नंबर 10, ओके। एंड दिस इज नंबर 11, you can say, right. And this is number 12, okay, number 12, right. And let it be number 13, इसको मैं 13 नंबर दे देता हूँ जो नीचे जा रही है। सो ये हो गया। सो अब हम इनके नेम लिखते हैं बेटा। सो ये जो नंबर 9 हो गया, राइट। नंबर 9 क्या है, दिस इज द ब्राजीलियन करंट, क्योंकि ये ब्राज़ील का कोस्ट है उसके आसपास मूव करती है। सो दिस इज द ब्राजीलियन करंट। अब नंबर 10 आएगा। सो नंबर 10 है बेटा, दिस इज द ग्यूनी करंट, क्योंकि इस तरफ ये जो ग्यूनी रीजन है, राइट, ग्यूनी करंट अफ्रीका का, ओके। सो एंड नंबर 11 है जो बेटा, दिस इज नोन एज द बेंगुएला करंट, राइट, बेंगुएला करंट। एंड जो नंबर 12 है बेटा, दिस इज नोन एज द फॉकलैंड करंट, राइट, फॉकलैंड करंट, इसको हम फॉकलैंड करंट बोलते हैं। सो यस, एक रह गया। जो नंबर 13 है बेटा, दिस इज कॉल्ड द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। सो दिस इज द 13 नंबर, ओके। सो अब बेटा क्या है बेटा, ये जो ब्लू करंट है, ब्लू मीन्स ये कोल्ड वाटर करंट है, राइट, कोल्ड वाटर करंट है। और बेटा यहाँ पर बेटा अब क्या है, ये कोल्ड वाटर करंट के आसपास यहाँ पर अफ्रीका में एक डेजर्ट बनता है जिसको हम नमीब डेजर्ट कहते हैं, राइट। सो नमीब डेजर्ट, दिस इज ड्यू टू द बेंगुएला करंट, राइट, नमीब डेजर्ट है, दिस इज ड्यू टू द दिस करंट, ओके। एंड सिमिलरली बेटा
एक डेजर्ट यहाँ पर फॉर्म होता है, इधर इस रीजन में, राइट, यहाँ साउथ अमेरिका में ये जो बनता है, राइट। एंड ये जो साउथ अमेरिका में जो बनता है बेटा, इसको हम कहते हैं पैटागोनियन डेजर्ट, राइट। सो ये आपका कौन सा डेजर्ट है? दिस इज नोन एज द पैटागोनियन डेजर्ट। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ क्योंकि पैटागोनियन डेजर्ट, ओके। सो वो नमीब डेजर्ट यहाँ बन गया। यहाँ जहाँ कोल्ड करंट है वहाँ पर आपका जो पैटागोनियन डेजर्ट की फॉर्मेशन होगी, राइट। ये साउथ अमेरिका में है, नमीब डेजर्ट अफ्रीका में है, और ये कोल्ड करंट्स के इफेक्ट की वजह से बनता है, राइट। सो अब मैं बेटा इस तरफ देखता हूँ, राइट। सो अब बेटा अगर हम इसको इस तरफ देखते हैं, सो सबसे पहले बेटा क्या है कि एक करंट ये आती है यहाँ से, और ये करंट इस तरफ ऐसे टर्न ले जाती है अलास्का की तरफ, राइट, ओके। एंड दूसरी क्या है बेटा, इसी में से अब यस अब क्या होगा बेटा, एक करंट ये अभी जा रही है, जो ये 7 नंबर वाली करंट ही है, राइट। एंड एक करंट बेटा यहाँ पर ये भी जा रही है, जो आपकी 8 नंबर वाली करंट है, राइट। सो इन दोनों के बीच में बेटा एक करंट इस तरफ आ रही है, एक ये करंट है, राइट। सो ये करंट है, ये एक नई करंट है, राइट। सो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा। सो ये हो गया। एंड अब बेटा क्या है, अब यहाँ से एक वाटर की करंट टर्न इस तरफ लेती है, राइट। एंड इसमें से एक वाटर की करंट इस तरफ टर्न लेती है। ये करंट्स हो गई इस रीजन में, राइट, ओके। सो बेटा अब क्या है बेटा, इस रीजन की जो बेटा ये वाली करंट है, राइट। सो बेटा इस करंट को मैं पहले नंबर ही दे देता हूँ, वैसे ही इजी रहेगा। दिस इज नंबर 14 एंड दिस इज नंबर 15, ओके। एंड दिस इज नंबर 7 जो हम पहले कर चुके हैं, एंड दिस इज नंबर 8 जो हम पहले कर चुके हैं, एंड दिस इज नंबर 16, राइट। एंड दिस इज नंबर 17, ये आपका 17 नंबर है, राइट। सो अब मैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन आपको बता देता हूँ कि ये कौन सी करंट्स हैं, राइट। सो ये वाली बेटा जो 14 नंबर करंट है, राइट, सो इसका नाम है बेटा, दैट इज द नॉर्थ पैसिफिक करंट, राइट, विच इज कॉल्ड द नॉर्थ पैसिफिक करंट। इसको हम अलास्का करंट भी कह लेते हैं, राइट। और जो 15 नंबर है बेटा, दिस इज नोन एज द कैलिफोर्निया करंट, राइट, क्योंकि ये कैलिफोर्निया के आसपास है, कैलिफोर्निया करंट, राइट। और जो आपकी 16 नंबर है बेटा, दिस इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, क्योंकि ये उल्ट दिशा में चलती है, इसलिए इसको काउंटर करंट बोल दिया है, क्योंकि ये दोनों करंट से इस तरफ जा रही है, इसके ऊपर नीचे, एक करंट इधर जा रही है, काउंटर करंट। एंड द 17th इज दैट इज नोन एज द हम्बोल्ट करंट, राइट, हम्बोल्ट, और पेरुवियन करंट भी कहते हैं हम इसको, पेरुवियन करंट, राइट, पेरुवियन करंट, यहाँ HUM है, हम्बोल्ट करंट और पेरुवियन करंट, राइट। सो दीस आर द 17 करंट्स, राइट। सो अब बेटा क्या है, यहाँ पर बेटा 15 नंबर कैलिफोर्निया करंट, दिस इज ए कोल्ड वाटर करंट, राइट। और बेटा यहाँ पर एक डेजर्ट बनता है, जिस डेजर्ट को हम मोजेब डेजर्ट कहते हैं, राइट, मोजेब डेजर्ट बनता है यहाँ पर। सो ये भी कोल्ड वाटर करंट के आसपास डेजर्ट बन गया, राइट। एंड बेटा एक डेजर्ट यहाँ पर बनता है जिसको हम एटाकामा डेजर्ट कहते हैं, राइट, एटाकामा डेजर्ट बनता है यहाँ पर। सो इस तरीके से जहाँ जहाँ कोल्ड वाटर है वहाँ वहाँ डेजर्ट बनते हैं, राइट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। सो नाउ बेटा लेट मी मूव टुवर्ड्स दिस पॉइंट, राइट। सो अब बेटा यहाँ से एक करंट निकलती है, इस तरफ जाती है, राइट, ऐसे जाती है, राइट। और अब क्या है बेटा, एक करंट आती है इस तरफ से, राइट, ये करंट इसमें जाके मर्ज हो जाती है ऐसे, राइट। और यहाँ से बेटा फिर एक करंट आती है, यू कैन से इस तरीके से नीचे की तरफ, राइट, ये करंट है, नीचे की तरफ आती है। और एक करंट बेटा यहाँ से फिर इस तरफ आती है ऐसे, राइट।
सो ये करंट्स बन गई हैं, राइट, यहाँ इस रीजन में। सो इस रीजन में ये जो करंट्स बनी हैं, अब हम इनको नंबर दे लेते हैं। दिस इज नंबर 18, राइट, एंड दिस इज नथिंग नंबर 8, सेम साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये, एंड दिस इज नंबर 19 एंड दिस इज नंबर 20, वी कैन से इसको हम 20 नंबर दे लेते हैं, राइट। सो अब बेटा क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो नंबर आपका 18 नंबर है, राइट, 18 नंबर is known as the that is the, you can say, West Australian current, right, West Australian current, okay, and so आपका 19th नंबर है, this is known as the Agulhas current, and जो आपका 20 नंबर है, this is known as the Madagascar current, right, Madagascar current, ये मेडागास्कर के आसपास जा रही है, this is known as the Madagascar current, okay। and अब बेटा क्या है, बेटा यहाँ पर फिर हम देखते हैं क्या, what is there, there is the, you can say, this is the cold water current, right, और cold water current है तो बेटा यहाँ पर फिर आपका डेजर्ट बनता है, राइट, यहाँ पर बेटा आपका जो ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट बनते हैं, राइट, जिसको हम ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहते हैं, यहाँ पर वो डेजर्ट की फॉर्मेशन होती है, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, राइट। सो इधर वाला जो पार्ट है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का, सो दिस इज ए डेजर्ट, राइट, सो इसको हम ग्रेट सैंडी डेजर्ट का नाम दे देते हैं, राइट। सो ये आ गया, राइट। सो नाउ बेटा व्हाट इज देयर, नाउ यहाँ पर अब क्या होगा, थोड़ा सा ही पेंडिंग है काम, राइट। सो बेटा यहाँ पर अब क्या है कि बेटा एक करंट तो यहाँ जा रही है, राइट, एक करंट ये वाली जा रही है एंड दूसरी करंट ये वाली है, राइट, एंड एक करंट बेटा आपकी ये वाली जा रही है, वही सेम जो हमने पहले बात की है, राइट। सो ये वाली करंट्स हैं। सो अब बेटा क्या है, यहाँ से यहाँ से बेटा अब एक करंट निकलती है, यहाँ से एक करंट निकलती है और ये वाली जो करंट है बेटा, इट गोज डाउनवर्ड्स लाइक दिस, यहाँ से ये करंट ऐसे जाती है, राइट, और अब बेटा क्या है, एक करंट यहाँ से निकलती है, वो करंट इस तरफ जाती है, राइट, और एक करंट बेटा इधर से ऊपर से आती है, वो करंट इस यहाँ से ऐसे आती है, सो ये यहाँ आके मिल जाती है, ओके। सो नाउ बेटा अब मैं इन सभी को नंबर दे देता हूँ, राइट। सो लेट्स सपोज दिस इज द नंबर 21, ओके, दिस इज नंबर 21, लेट्स सपोज, राइट, इसको हम 21 नंबर दे देते हैं, इसका नंबर 8 रहेगा, राइट। सो इसका नंबर 7 रहेगा, वही जो पहले वाली करंट है ये, और इसका नंबर 16 रहेगा जो पहले है हमने दिया हुआ, राइट, और इसका नंबर 22 रहेगा, और इसका नंबर बेटा रहेगा दैट इज 23, ओके। सो अब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, इनके अब मैं नेम लिख देता हूँ यहाँ पर, राइट। सो 21 नंबर करंट है जो, दैट इज द ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, राइट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्योंकि ये वार्म वाटर करंट है, यहाँ कोई डेजर्ट नहीं बनेगा, राइट। एंड 22 नंबर करंट है जो बेटा, दिस इज नोन एज द कुरोशिवो करंट, राइट, ये जापान के कोस्ट पे है, कुरोशिवो करंट, राइट। एंड जो आपकी बेटा 23 नंबर है, दिस इज द राइट ओयासिवो करंट, ओयासिवो करंट। सो दीज आर द वेरियस करंट्स, राइट। सो बेटा इन सब में आप एक कॉमनैलिटी देखोगे कि जो भी करंट्स पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं वो सब कोल्ड वाटर करंट हैं, राइट। हम इसको देख लेते हैं, ये भी नीचे आ रही है, ये भी नीचे आ रही है, ये भी, राइट, एंड ये भी जो इक्वेटर की तरफ आती हैं करंट्स, राइट, ये भी इक्वेटर की तरफ आ रही है, ये भी, ये सब कोल्ड वाटर करंट्स हैं, राइट। और जो करंट्स इक्वेटर की तरफ से पोल की तरफ जा रही हैं वो सभी की सभी आपकी वार्म वाटर करंट्स हैं, राइट। ये भी वार्म वाटर करंट है, ये भी वार्म वाटर करंट है, ये भी वार्म वाटर करंट है, ये भी वार्म है, ये भी एंड ये भी एंड ये भी, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको नोट करने के लिए, ओके। सो ये वेरियस करंट्स हैं,
राइट। और जहाँ पर कोल्ड एंड वार्म वाटर करंट ज्वाइन करती है, दोनों का संगम होता है, दोनों का मिलान होता है, जैसे ये पॉइंट है, राइट, जापान का कोस्ट आ गया, एंड ये पॉइंट है, दिस इज द न्यू फाउंडलैंड एरिया, राइट। वहाँ पर बेटा फिशिंग बहुत होती है, राइट, जहाँ पर ये दोनों ज्वाइन करती है, राइट। सो ये था आपका कोल्ड वाटर करंट्स का, राइट। और कोल्ड वाटर करंट्स के पास जो है वहाँ डेजर्ट बनते हैं, मैंने आपको बता भी दिया डेजर्ट कौन कौन से बने हुए हैं। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। रीजन क्या होता है लेकिन डेजर्ट बनने का यहाँ पे? बेटा मैंने आपको बता तो दिया, अभी 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 आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी, राइट। अभी हम यहाँ जाते हैं, मूव करते हैं, ये देखो ना, मैंने आपको बताया है कि जहाँ कोल्ड वाटर करंट है, एवेपोरेशन लेस है, एवेपोरेशन लेस है तो ड्राई इफेक्ट रहता है। ओके, सो ये रीज़न है, राइट। सो ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। सो अगर किसी को कोई डाउट है, सो यू कैन रेज द क्वेश्चन